Hi, welcome to the last episode of Nari Shakti. I hope you enjoyed the series. जितना मुझे मजा आया बनाने में, I hope आपको भी उतना मजा आया देखने में. Since it's our last episode, so I thought of inviting somebody who's a mixture of all the Devis. When we talked about 9 Devis, 9 group of Durga, and I have Tanupreet with me. Hi Tanupreet, how are you today? Hi, I'm good. How are you? I'm good. She's a life coach, and let's hear it from her. So, can you introduce yourself a little, Tanu? My name is Tanupreet Kaur, and I am an advocate, a professor, a writer, and life coach now. Oh wow! And So many roles. and a mom, and also juggling between work and everything. I So, know, with family. God's grace, yeah. Oh wow! Oh wow! So, how do you manage all of that? I think primarily with God's grace, and secondly with family support. Amazing. As this is our last episode, and we are talking about Siddhi Datri, and she is the last roop like of Durga Ma. How do you relate yourself with Siddhi Datri? See, as per my knowledge for Devi Siddhi Datri, she signifies ambition, power, and spiritual fulfillment. And see, everybody views it at differently. और मैं भी उसे बहुत personalized तरीके से देखती हूँ. So for me, ambition was always having a balanced life. So there could be balance between work and life. There could be balance between my kids and my, my husband and me, and career and work at home as well. So there could be balance. That was my ambition, and I think somewhere I've been able to achieve that. And also for that, मैं मुझे लगता है कि वो भी आपके लिए blessing होती है बहुत Blessing would बड़ी. be, that's true, if you can balance all Yeah, things. yeah. That's true. Okay, when we talk about spirituality, what is spirituality for you? Maybe for me, it's karma. I don't believe in sitting in front of the god and doing puja. I don't do that, to be honest. But first ritual in the morning, I get up and I put Hanuman Chalisa on, and we listen to that. और मैं उसके बाद गाने भी सुनती हूँ, बट माई डॉटर हैज लर्न अ लॉट ऑफ भजन्स. ये नहीं कि मैं बैठ के पूजा नहीं कर सकती, शायद से मेरे मंदिर में हर रोज पूजा नहीं होती. और मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक तो कर्मा, दूसरा being nice to other. I think if you're nice to other people, then that will come back to you again, karma. I just tell my daughter just one thing: आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं. So for me, that's spirituality. For you, what is the definition? See, I'm born in a Sikh family. Okay. So spirituality and religion were a very natural part of That's my great. life growing up, and it still is. और वही चीज मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को भी आगे सिखा सकूं. So yes, I'm very religious as well. और पाठ या meditation, and ये दोनों aspects hand in hand चलते हैं मेरे लिए. So where religion is कि आप एक धर्म का रास्ता है, और spirituality is where your essence is, like आप जो सही मायने में सही करना, या आप उस चीज से आप रिचुअल से हट के आप बेसिक पे करना Exactly. फोकस. हाँ. So for me, I think it goes hand in hand, and yes, without spirituality, without mindfulness, and without meditation, it's not possible for me. So मेरे लिए तो ये दोनों चीजें हाथ में साथ साथ चल रही हैं. Which is really great. अच्छा, अभी मुझे एकदम से ये बात क्लिक की, मेडिटेशन की बात करते हैं. I remember when I was a young girl, I was very rebellious, and I had a lot of anger in me, but my parents were not aware about मेंटल हेल्थ. मुझे लगता है हमारे टाइम में मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. बट व्हेन आई कंसीव्ड माय डॉटर, आई स्टार्टेड डूइंग योगा एट द, मतलब 4 महीने की जब प्रेग्नेंट थी मैं, तब मैंने स्टार्ट की. देयर आई लर्न द एसेंस, द ट्रू बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन. आई स्टार्टेड डूइंग इट. मैं रेगुलरली अभी भी नहीं करती हूँ, बट देर आर पीपल हु थिंक यार कितना बोरिंग है बैठ के, आपको सिर्फ बैठना है, चुप बैठना है. देर आर यंग पीपल हु डज दैट. सो व्हाट डू यू टेल देम कि व्हाट इज लाइक, हाउ कैन वी like make it a habit, और कैसे हम उसको समझा सकते हैं लोगों को? So Tisha, the thing is, मेरे बहुत सारे students रहे हैं because I was a professor. So I have a lot of youngsters around me, and I often tell them, सबसे important relationship क्या है? आपका अपने साथ. और meditation is something जो उस relationship को बहुत खूबसूरती से निहारता है. कनेक्ट करता है आपको Yes. अपने आप से. I think the more you meditate and the more you look inside, you get to. आजकल हम क्यों भटक रहे हैं ना, क्यों stress anxiety इतनी ज्यादा है? Because we have lost that connection. But do you think stress anxiety पहले भी होता था, but लोगों को पता ही नहीं था वो No, stress anxiety? yes, it's always been there. Now Overexposure. awareness is there, but
with overexposure, with internet being there, with this added pressure of being liked by everybody, I know. and then quick successes, and so many things happening back to back. एकदम मतलब there's this quick, एकदम से बहुत जल्दी लोगों को वो मिलता है, अब फेम मिल जाता है, and then quick money is there. That's So it's distracting. Things take time. And the first step I tell my clients also and my young ones and सबको आसपास मैं जो बताती हूँ, मुझे ये लगता है कि आप जब अपने साथ रिश्ता ठीक करते हो, कोई भी रिश्ता हो आपका बाकी, वो सारे उसी से ठीक होंगे. एंड उसका सबसे मेन जो आई थिंक easiest way to do is meditate. You can meditate on any chanting. आप किसी भी नाम पे chant कर सकते हो. आप किसी जो भी आप मतलब लोग कैंडल पे भी meditate करते हैं. हाँ. लोग thought पे meditate करते हैं. लोग एक wall को देख के meditate there's guided meditation. That I put out guided meditation very frequently because a lot of youngsters ask me कि मैम ध्यान नहीं लग रहा. हाँ, और हाँ तो बहुत जल्दी overthinking. Mind is a monkey, right? So उसको tame करना और वो धीरे धीरे होता है. And once you get a hang of it, I think वो quiet and वो silence इतना beautiful है. That's true. And I never call it an addiction because addiction is a negative word for me. So it's such a beautiful healing thing that you just want to do it again and again and again and again. That's true. That's true. I couldn't agree more. When we talk about mental health, my daughter is 4. And पहले हमारे इस टाइम पे चांट ये सब नहीं सिखाया जाता था. But now my daughter does that. तो do you think अगर और मुझे लगता है हमारे टाइम की जनरेशन, I'm 34, हमारे टाइम की जनरेशन थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि हमें ये चीजें इंट्रोड्यूस नहीं की गई मे बी, और इस पाथ पे लेके जाए नहीं किया, बस पढ़ नंबर लाने. बिकॉज आई थिंक हमारे टाइम पे ये होता था 96 आने बहुत जरूरी है, 98 आने बहुत जरूरी है, कॉलेज में एडमिशन बहुत जरूरी है. मेरे साथ तो ये था टू बी ऑनेस्ट कि बेटा 95 नहीं आए, ओहो 95 आए अब 100 लेके आना. तो वो कंपटीशन, कांस्टेंट कंपटीशन था. मे बी अब वो लैक ऑफ नॉलेज हमारे पेरेंट्स की भी थी कि उनको पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ कितनी सफर कर रही है. बिकॉज आई रिमेम्बर I was doing masters in advertising and marketing, and I was really good in computers, like very good. And in my finals, I got 95 out of 100. और मैंने पापा को फोन किया. I was staying in PG नोएडा में. मैंने कहा पापा मुझे कुछ बताना था, मेरे 95 आए हैं कंप्यूटर्स में. तो my father's first reaction was 5 नंबर कहाँ कट गए बेटा, 100 नहीं आए, नेक्स्ट टाइम 100 लाना. तो वो कांस्टेंट चीजें ऐसी थी और कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं की. हमारी एज के बच्चे तो हम शायद से हम और अवेयर होना चाहते हैं, जो आज के पेरेंट्स हैं वो और ज्यादा एक्सपोज होना चाहते हैं, वो और ज्यादा डरते हैं कि यार हमें मेंटल हेल्थ पे पूरा फोकस करना है. डू यू थिंक इट्स टेकिंग अ ट्रोल एज वेल? कर रहे हैं हम लेकिन ज्यादा कर रहे हैं. या यू वेरी राइटली सेड, हम जो कर रहे हैं ना जिस मोमेंट में अब हम बैक तो जा नहीं सकते. एग्जैक्टली. सो अभी अगर हमें मौका मिल रहा है देन व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे. एग्जैक्टली. सो इफ वी आर अवेयर ऑफ समथिंग, एंड देखो हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है. अगर एक्सेस में, अभी मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट पेरेंट्स केम टू मी इवन प्रायर टू कंसीविंग आस्किंग मी कि मैम कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बढ़िया है. मैं कहा इट कम्स फ्रॉम हियर. दैट्स ट्रू. You don't have to learn something as parenting is as natural as बट वही बात है ना, nature. इतना देख रहे हो Yeah. और ये प्रेशर So हो गया है. then I told them the best thing that you can do for yourself is shut the net, disconnect and go and enjoy and be with your family, be with your grandparents. आप उनसे देखो वो आपको कैसे बड़ा करा उन्होंने. It is as natural as that. ये इतना मेरे लिए भी इतना आई ओपनिंग था बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि मतलब अभी और यंग जनरेशन बहुत अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड ये स्ट्रेस लेती है. Exactly. अभी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ योर टीममेट्स एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस केस रिसेंटली. गर्ल मेरी डॉटर के स्कूल से एक कॉल आया मुझे. शी इज एज यंग एज 6-7 years old और एग्जाम का स्ट्रेस इतना था दैट शी वाज हैविंग स्टमक एक एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो अच्छा देखो हमें भी डर लगता था. मैथ्स का एग्जाम होता था, आई थिंक सबको डर. आई वाज वेरी बैड इन मैथ्स. मतलब मैंने तो बहुत मार खाई है पापा से मैथ्स के. तो वो डर आई थिंक हम सब में होता था, बट वी नेवर टर्म्ड इट एज स्ट्रेस बिकॉज वी डिडंट नो एट दैट टाइम. We didn't know these words. Now we know. So now what is happening is over exploitation of these words as well. That's true. That's what. और मैं इस चीज के ऊपर मैं काफी काम कर भी रही हूँ already, that we shouldn't throw around words like depression, anxiety and stress just like that. They are very serious because disorders. अभी मेरी डॉटर का पेरेंट टीचर मीटिंग था
पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, आप आज के टाइम पे पीटीएम हमारे टाइम पे होता था, मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आती थी। और ना मैम ने बोला कि राबिया गॉट हर्ट वन डे एंड शी डिड नॉट टेल इट टू एनीबॉडी इन द स्कूल। तो मैम ने बोला मे बी शी इज हाइडिंग हर इमोशंस या कुछ भी। तो मैम ने कहा प्लीज इंट्रोड्यूस हर टू डिफरेंट इमोशंस लाइक एंजाइटी। And I'm not going to do that. Yeah, It's a very negative word. I can tell her that you're hurt, you're sad, Keep you're it happy, simple. you're joyful, Keep it simple. you're excited. Yeah. मैंने कहा why would I introduce her to anxiety? मतलब वो मोमेंट के लिए मैं डर गई कि यार ये लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्या पता है बच्चे को, बिकॉज यार Yes. अभी बच्चा जो है इट्स लाइक अ Sponge. They are absorbing everything. whatever you're saying. तो मैंने कहा मैम प्लीज डू नॉट इंट्रोड्यूस दिस वर्ड टू माई चाइल्ड एवर अगेन। तो कहती नहीं नहीं मैम मतलब वो नहीं था। तो मैं वहां डर गई कि यार अभी तो ये वर्ड मुझे पता है क्या लगता है तिशा, दैट एक्चुअली में हम बहुत जल्दी डरते हैं. In today's time, the generations, you know, the parents, the young parents, and everybody gets scared very easily. क्योंकि हमारे देख पेरेंट्स रहे हैं ना, हम किस चीज से डर रहे हैं? हम फेल होंगे ना, एज अ एक एपिसोड में फेल होंगे, एक किसी मौके पे एक दिन हम चूकेंगे. इट्स नॉट दैट आवर पेरेंटिंग विल फेल ना. आई एम नॉट इन दैट कंपटीशन ऑनेस्टली। मुझे अभी रिसेंटली हुआ ये एपिसोड कि देयर वाज दिस बुलिंग इंसिडेंट इन अ स्कूल एंड आई वाज लाइक मेरे को काउंसलिंग के लिए उन्होंने बुलाया और मुझे ऐसे लगा वो दैट पेरेंट वाज क्राइंग, शी वाज सो, वो अपने आप को इतना यू नो इतना गिल्टी फील कर रही थी. एंड आई सेड बच्चे झूठ बोलते हैं, आप क्या उम्मीद करो? एंड शी वाज लाइक नहीं मेरा तो पेरेंटिंग, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद माय पेरेंटिंग स्टाइल ओनली, यू नो आई एम नॉट एबल टू बैलेंस, मे बी आई एम वर्किंग, सो मे बी सब मुझ पे उंगली उठाएंगे. आई सेड या नो नो नॉट मदर्स गिल्ट. सी ये बहुत लेजिट गिल्ट है, बट ये इतना इतना बड़ा कब बन गया? मदर्स हमारे टाइम पे भी वर्किंग थी एंड दे वर ट्राइंग टू बैलेंस ऑल्सो, एंड जो घर पे भी थे वो भी बहुत काम करते थे. मैंने आज की डेट में फ्रैंकली घर पे ज्यादा लोगों को रिलैक्स करते हुए देखा है. देयर आर मोर अमेनिटीज टू देयर डिस्पोजल एंड आवर पेरेंट्स यूज्ड टू वर्क अ लॉट हार्डर. दैट्स ट्रू, राइट. बट वो बैलेंस जो है, जो एक थिन लाइन, आई थिंक आप पेरेंट्स को भी, किसी भी इंडिविजुअल को फॉर दैट मैटर, यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन कि मुझे कहाँ तक इंटरनेट से कंज्यूम करना है. हम ये इतना कुछ देख रहे हैं ना, कई बार मेरे पास एक पेरेंट आए, वो कहते हैं आज की डेट में तो मैं बोल भी नहीं सकती अपने बच्चे को कुछ. मुझे उस दिन ऐसे गिल्टी लगता है बिकॉज कोई ना कोई रील आ जाएगी, डिड यू शाउट ऑन योर चाइल्ड, यू शुड नॉट डू दैट. एक्चुअली दिस हैपेंस एंड शी इज लाइक, बट दिस इज सो, मतलब यार ये बहुत बहुत वो ज्यादा गिल्ट वाली पता है इसका मैंने उनको क्या जवाब दिया था? यार छोटे तो हमने तो इतनी मारे खाई हैं. अब बच्चा गलती करेगा. देयर आर टाइम्स व्हेन आई गेट रियली एंग्री और मैं चिल्ला देती हूँ. तो यार आई एम अ मदर, अगर मैं प्यार कर सकती हूँ इतना तो मैं जब वो मुझे इतना परेशान कर रही है तो उसको ये भी समझना पड़ेगा एंगर भी तो एक वैसे आपके तो इमोशन है, तो ये भी तो एक इमोशन है. Moderation में all these emotions are absolutely fine. If we talk about your personal life, when we were talking, I just got to know that you had 2 miscarriages. I know a woman is very powerful. Like it takes a lot of courage. Did it affect your mental health? And did it made you more inclined towards spirituality? Yeah. See, I live by a basic principle of my life, and that's called Rab di Raza. Okay. तो जो उनकी मर्जी है उसमें आप अगर राजी हो तो आई थिंक आप यू बाउ डाउन. आप हम ह्यूमंस ना बहुत ईगो लेके चलते हैं, हमारी चलती है नहीं कुछ. एंड आई थिंक द क्विकर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड आप जितना जल्दी सरेंडर करो और एक्सेप्ट करो तो उतना ही आपको फिर अच्छा लगने लगता है. जब ये इंसिडेंस हुआ मेरी, दैट वाज आई थिंक 2 years into my marriage, और उस टाइम पे मुझे एक फाइब्रोमाइल्जिया करके प्रॉब्लम भी हुई थी बिकॉज आई वाज अ कॉर्पोरेट लॉयर, सो आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट एंड दिल्ली ट्रैफिक यू नो हाउ इट इज. एंड सो मेरी बैक में बहुत सिवियर ये स्पाइडर वेब पेन था. सो इट इंक्रीज सो मच दैट आई हैड टू एक्चुअली टेक अ सबैटिकल फ्रॉम माय जॉब. And during that time, once I started healing and everything, so then I decided that I'll start sabbatical पे हूँ तो I'll take care of the family then. And पहला miscarriage was very quick. Okay. तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. But दूसरा miscarriage took a time. And then जब वो हुआ तो it was very shattering. एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक तो आपका दिल इतना धड़क रहा होता है ना उस टाइम, इतनी तेज कि जैसे यू वांट टू डिनाई दिस रियलिटी कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये एक बार ही हो चुका है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए. एंड सो
I came home running and crying, and it was very, very shattering उस time पे, because it's dreams breaking, you know, it's a so but I still believe कि जो मेरे वाहिगुरु की या जो बाबा जी की मर्जी है, जिसने जब वो- आना है उसने तभी आना। यस, और उन्होंने बेस्ट सोचा है मेरे लिए। तो आई थिंक अगर आप उस चीज को आप उनका बहाना मान के, उनका जो बहाना है, मतलब उनकी मर्जी को मान के आप चलो, तो सब अच्छा है। Actually, तो now you have two beautiful yeah, kids. yeah, now unfortunately, and you know, when I had Ayat Preet, so her name means prayer of love. Oh wow. So we did a prayer like wholeheartedly कि बाबा जी, अगर आपको लगता है कि हम इस Deserve, लायक हैं हाँ। कि you know we deserve a beautiful soul, so please bless us with a you know with your kid, one of your kid. So then Ayat happened, and then Samrat came along, and Oh so wow. that's how. Beautiful names, yeah. Ayat and Samrit. Yeah. So one boy, one girl. Yeah. So you have a complete family. Touch wood. Amazing, amazing. That's really nice. But you know, like you mentioned, power और spirituality का जो connection है, वो उस time पे वाकई में बहुत naturally आप, मतलब you know, जब आपके साथ कुछ होता है ना, तब आप इन चीजों की कदर समझते That's समझते हो, that's true. So power for me, I always say this thing कि power is your inner resilience, your own power. जैसे आपके साथ कुछ होता है ना, तो कई लोग उस चीज को बहाना बना लेते हैं कई लोग हार सीख मानने लेते के लिए, हैं, और हाँ। कई लोग उसी चीज को एक स्टेपिंग स्टोन मान के आगे बढ़ते बढ़ते हैं। So that choice comes from your inner power. So once you work on that inner power, and I think spirituality is a means to strengthening that inner power. आप जब when you understand that you're an essence, आप किसी बहुत बड़ी cosmic power के आप एक छोटे से essence हो, और आप आपको एक ब्यूटीफुल सा मौका मिला है कुछ ये 60 70 80 साल के I लिए know. एक एक्सपीरियंस करने का, सो जस्ट लिव इट विद ह्यूमिलिटी, एक्सपीरियंस इट ऑल, एंड देन bow down when the time comes. That's true. That's true. Yeah. Very well said. Yeah, very well said. I have one more question for you. आजकल की lifestyle के बारे में बात करें, what do you have to say about it? Like most of the time you're on your phone, you're eating junk. Kids are more inclined towards junk. आजकल के पेरेंट्स की भी बात करें तो उनको लगता है फोन दिया बच्चा को एक साइड बैठाओ, अपनी लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। त्रिशा, अनफॉर्चुनेटली ना ये आई थिंक ये भी पार्ट है सोसाइटी का, एंड आई थिंक व्हेन यू सी दिस यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू डोंट वांट टू बी लाइक। जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं कई बार ये बात बताती हूँ कि आप बच्चे तब करो या शादी तब करो जब आप उसके लिए एडजस्टमेंट और काम करने के लिए तैयार हो। True. आप अगर काम नहीं करना चाहते हो एंड यू जस्ट वांट टू गेट द टैग कि अच्छा यार मैंने तो शादी कर ली, अब चलाएगा वो या चलाएगी वो, यू नो, या मैंने बच्चा कर लिया, अब पालो, आप लोग पाल लो, आपको चाहिए था ना ग्रैंड किड। ये बहुत लोग करते हैं, बहुत ये लोग। मुझे ऐसे लगता है कि प्लीज बी इतने से मैच्योरिटी रखो कि ओनली गेट इनटू अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर कमिटेड टू दैट रिलेशनशिप। इफ यू आर नॉट कमिटेड and if you don't want to work towards it, then you are not just spoiling your own life, you are creating a ripple, and that is going to spoil lives further. कई बारी मैं आजकल पेरेंट्स को मिलती हूँ एंड दे आर जस्ट सो स्पॉइल्ड, खुद वो इतने इतने आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट ये कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इतनी विलफुलनेस जो है ना कि नो आई हैव माई ओन स्टैंडर्ड, सो आई विल डू अ सर्टन थिंग सर्टन वे, और वो चीज़ आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो। इतनी फ्लिमजी सी ह्यूमन लाइफ है यार, इतनी बड़ी ईगो लेके कहाँ जाएंगे हम। एंड आप अपने बच्चे को आप ये मत सोच के बड़ा करो कि वो सिर्फ मेरा बच्चा है, दे हैव कम थ्रू यू, यू आर जस्ट अ मीन्स, एंड यू नो उनकी लाइफ वो आगे चल के वो सिटीजन बनेंगे, उनके साथ लोगों ने एडजस्ट करना है। पेरेंट्स कहते हैं उनकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, But वो- तो उन लोगों ने उसको डिफरेंट तरीके से पर्सपेक्टिव भी बदल दिया। मैं कई बार ये बोलती हूँ कि यू नो अपने बच्चों को इतनी जल्दी अपनों से दूर मत करो। जो आप अपने बच्चे के लिए करोगे ना, वो और कोई नहीं कर सकता। That's true, that's true. वो कोई भी नहीं कर सकता। एंड आई रियली अपलॉड women who have this courage to go out and work and balance that thing, because आप जितनी देर अपने बच्चे के साथ नहीं हो, और building is especially when they need your attention. Actually, हाँ. मेरे पास इतने not only the young kids but teenagers के इतने parents आते हैं, and they are like, and addictions are there unfortunately. So I tell them, you dig back, आप story देखते हो ना कि कहाँ से ये addiction शुरू हुआ, क्यों हुआ. So when you look at it, the guilt, they know where the guilt lies. They were not there. That's true. और उस टाइम पे कोई और उनका सब्स्टिट्यूट बन के था जिसको कदर नहीं थी कि वो बच्चा कहाँ है, क्या अब कर जैसे रहा है। हेल्पर पे डाल दिया, उसको क्या, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको सिर्फ संभालना है, बेसिक्स देने हैं, दैट्स इट। जो मॉरल्स वैल्यूज आप बच्चे को सिखा सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई भी सिखा सकता है। आपका एक
कहीं ना एक सेल्फिश इंटरेस्ट होता है पेरेंट्स का Exactly. कि मेरा बच्चा बाहर जब निकलेगा ना तो इससे मेरी इज्जत भी बनेगी, जब इसकी That's- तारीफ होगी, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी या है। जब मेरे बेटे की तारीफ या मेरी बेटी की तारीफ feel होगी तो proud. आई फील You प्राउड feel ऑफ इट, proud, राइट? हाँ। सो दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, बट हम उनके लिए ब्लेम लेने के लिए राजी नहीं है। कि गलत किया तो हमारी गलती थोड़ी नहीं, वो तो फिर ओ माय गॉड, यू नो देयर सो मच हैपनिंग Exposure, अराउंड, देयर सो मच अनफिल्टर्ड एक्सपोजर, अब कितना कर लें हम? दैट डजंट जस्टिफाई। when I delivered Rabia, she's a COVID baby, तो 2 साल my husband was with me, मतलब बाहर गए नहीं हम, तो हमने 2 साल टीवी नहीं देखा, अच्छा, बिल्कुल नहीं देखा। रात को जब वो सो जाती थी तो हमने देखा, वरना मेरी डॉटर ने कभी टीवी देख के खाना नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया, आज भी नहीं खाती। अगर आईपैड लेके बैठ गए तो, और उसी टाइम बैठी और खाना खाना है तो खाना रुक जाएगा और आईपैड देख ले आते 10 मिनट, Okay. या आईपैड हटेगा और खाना खाएगी। जब हम 2-2.5 साल बाद बाहर निकले ना तनु, तो हम उसको रेस्टोरेंट्स लेके जाने लगे, तो उसको दिखने लगा सब बच्चे तो देख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देख रहे? वहां हमें पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर भी नहीं। आप बच्चे को क्या समझाओगे कि हम नहीं चाहते? बच्चा नहीं समझेगा कि मेरी मम्मा मेरे लिए अच्छा कर रही है। तो हमने वहां लगा यार कि अगर हम उसको बाहर लेके जाए तो छोड़ दें, बाहर लेके जाना एक्सपोजर भी जरूरी है, लेके जाए तब उसको कैसे समझाएं कि बेटा हम जो कर रहे हैं वो हम आपके लिए ही कर रहे हैं, दैट्स द राइट थिंग, बट वो जो कर रहे हैं वो गलत करें, क्योंकि उनका पेरेंटिंग स्टाइल अपना है, वी कांट जज समबडी। तो हम वहां पे थोड़ा लीनियंट होके कि यार अब 2.5 साल की हो गई, अब दिन में 1 घंटा उसको, आधा घंटा आईपैड दिया, 1 घंटा स्क्रीन टाइम देना शुरू करते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसे होता है कि देर आर सिचुएशंस कि आपको सोसाइटी पे कोई ब्लेम नहीं है वो, लेकिन वो रियलिटी भी है। Yes, absolutely. No, we can't deny that. Yeah, there's so much out there. हम ना चाहते हुए बच्चे, अब जैसे for instance, my children travel in that common van. हाँ, So they pick up language. that's They and जब first time my son came to me and he said, तू पागल है? And I said, Samrat, what did you say? And how old is he? 3 and a half. So, cute. and he just recently picked that up. So I said, what did you say? And he said, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब he just knew it that I have to take it back. I have said something wrong. मतलब आप लेके जाएंगे बच्चे ऑब्वियसली। अब जैसे 2.5 साल की जब तक थे तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव, उसके साथ ही पूरा टाइम आई वाज डूइंग कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम होम, तो मैं बाहर ज्यादा, और मैं अगर एज एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो मैं बाहर इवेंट्स में नहीं जाती, बिकॉज आई वांट टू स्टे विद माय चाइल्ड, आई वांट टू गिव दीज 10 years. These are The building very, blocks for my that's a daughter. very nice thinking. No, because See, Disha, the thing again comes to the same thing that you have to maintain a balance. exactly आपको कहीं ना कहीं आके उनको थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा, नहीं, because छोड़ते हैं, ऐसा नहीं you know नहीं to छोड़ते। develop their own thinking, to develop their own language, to develop their own friendships, to understand what they want. जो बच्चा अपनी भी भाषा खुद समझेगा ना, जब वो एक्सपोज होगा तभी समझेगा। भाई मैं कह रही, जब वो 2.5 साल के ना बाहर जाना शुरू हुआ, तब मुझे लगा अंकित, और हम बोलते थे यार हम नहीं चाहते वो करें, मैंने कहा अंकित हम कितना कंट्रोल कर लेंगे? हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं या उसको सिखा सकते हैं, और कितना करेक्ट कर लो। अभी शी इज एट दैट एज, वो बोलेगी और हमें उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, लेवरेज देना पड़ेगा। बहुत छोटी एज में तो आपको आई थिंक थोड़ा सा ये ट्रायल एंड एरर चलता है, एंड आई थिंक दैट इज हाउ पेरेंट्स फाइंड देयर लैंग्वेज, जो एक यू नो पेरेंटिंग लैंग्वेज है या पेरेंटिंग स्टाइल है, व्हाटएवर। सो इट्स वेरी इंडिविजुअल थिंग, बट हाँ मेजरली आई स्टिल से द सेम थिंग कि आप बैलेंस मेंटेन करो। बहुत ज्यादा एक्सपोजर या बहुत ज्यादा ढील देनी भी सही चीज नहीं होती। देयर इज अ राइट एज। सो इफ यू हैव नो, लाइक अगर आप कई बार लोग कहते हैं ना कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था यार, नॉलेज नहीं थी, देन आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, आप बाहर निकल के पूछो एंड द हेल्प इज देयर। I think again there's a problem. It's with my husband also. Whenever we are traveling abroad, he can't ask people for help. मतलब हम कहीं जा रहे हैं, हम 2.5 किलोमीटर चल लेंगे, वो सामने खड़े बंदे से पूछेंगे, मैं कहती हूँ हाउ डज इट मैटर? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं गूगल मैप कर लूंगा, मैं गूगल पे सर्च कर लूंगा। ये तो खैर हमेशा से रही है, but I think see a lot of reasons go behind it why people are fearful of asking for help. एक बारी को ये लगता है कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मुझे इतना भी नहीं पता, मैं अपने बच्चे को कैसे बड़ा करूं, ये भी मैं लोगों से पूछूंगा। हाँ, ये भी बहुत बड़ा fear होता है। कई बार लोगों को ये लगता है कि यू नो अच्छा उन्हें मुझसे ज्यादा पता है, ego speaks. You know, sometimes there's ignorance, sometimes there's ego, sometimes there could be any other reason. That's true. So reasons could be many, but अगर आप अपने रिश्तों के लिए कुछ अच्छा, जेन्युइनली कुछ अच्छा करना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको लग रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ गलत हो रहा है, then seek help. Help is just around a phone call. Just आप अपने घर वालों से बात करो, just ask.
कई बार तभी हम काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट्स आज की डेट में क्यों इतने इंडिया में अच्छा इतने अभी क्यों ना हैं? रिसेंटली आई एम गोइंग ऑन अ हीलिंग ट्रिप Yeah. और ना वहाँ पे मेरी एक बंदी से बात हुई तो उन्होंने बोला ये जो काउंसलर्स और विद ड्यू रिस्पेक्ट दे कैन हील यू देयर इज अ लेयर ऑफ हीलिंग सो दे कैन हील यू टिल फर्स्ट और सेकंड लेयर बट इनर हीलिंग आपको आती है व्हेन यू आर स्पिरिचुअली connected to something. Yeah, that is है what ना? even I believe. Yeah. See, as They Tanu, can- जो मेरा they can show brand, you a path. Yeah. But then जो inner जो मतलब full the full deep-rooted, healing yeah, होती है, deep-rooted. you'll have to connect yourself to spirituality Yeah. or maybe something which gives you peace. Yeah. Yeah. See, जैसे मैं मेरा जो ब्रांड है तनु हील्स, आई ऑलवेज से कि मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बिलीव करती हूँ. टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ वन सेल्फ यू नीड टू टैप इन टू योर इनर पावर. That's true. हाँ. तो मेरा जो टैगलाइन है वो भी यही है, अनलॉकिंग योर इनर रेजिलियंस. सो इट्स नॉट ओनली योर फिजिकल वेलबींग, इट्स नॉट जस्ट योर इमोशनल वेलबींग और योर मेंटल वेलबींग, इट्स योर स्पिरिचुअल वेलबींग एज That's वेल. true. सो इट्स अ फोर वे थिंग. आपको जब आप ये पूरी तरह से सब चीजों को आप हैंडल करते हो, और इसका मैं बहुत आपको एक मैं हमेशा कई बार ये बात बताती हूँ कि जो कटी पतंग होती है ना, वो उड़ती है स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा सोर करती है, पर फिर अल्टीमेटली इट जस्ट फॉल्स डाउन, राइट. सो जो डोर से कनेक्टेड पतंग होगी, जिसकी जो अपनी रूट से जुड़ी हुई से है, जुड़ी हुई है. वो वापस आ सकती है. उसको पता है कि मैं कहीं पे भी जाऊं, वापस कितना आ भी उड़ूं, मुझे पता है कि मेरी मेरी एक roots जड़ का है, है, मेरी हाँ. रूट्स है. सो और हम इंडियन कल्चर से हैं यार. आई मीन वी आर जस्ट सो ब्लेस्ड. I have studied a lot of cultures, and in all the cultures that I've studied, I've come across this thing that we are very very blessed that we are born in Indian culture, जो कि बहुत holistic development की बात करते हैं. True, true. हम लोगों ने ना कुछ टाइम, कुछ सालों में वेस्टर्न कल्चर को बड़ी ब्लाइंडली एम Follow किया कर लिया. और उसको बड़ी कन्वीनियंटली यूज और करते मुझे हैं. लगता है हमने वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर लिया बट वेस्टर्न कल्चर वाले लोग अब इंडियन कल्चर फॉलो वो भी है. और दूसरी चीज शिशा, हमने ना इन वेस्टर्न कल्चर के भी कुछ ही चीजों को उठाया है. वी जस्ट वांट द फ्रीडम फैक्टर. we don't want we That's don't. true. अब उनका अगर आप पूरा कल्चर समझो, अगर अमेरिकन कल्चर की हम बात करें, तो वो लोग अपने बच्चों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं. 16 साल की एज में बच्चे बाहर, उसके बाद ना बच्चों को माँ बाप से मतलब है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर, हाउ द नॉर्म वर्क्स, राइट. एंड कई ना बच्चे माँ बाप को पूछ रहे हैं, ना माँ बाप बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व हैं, सब अपना अपना सेपरेट. इंडियन पेरेंट्स का क्या है, अभी जो यंग द जनरेशन, वी वांट द फ्रीडम. हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, बट हम ये चाहते हैं कि हम माँ बाप पीछे. यस, हाँ. हमें जब जरूरत हो तो हमारे माँ बाप भी हाँ. खड़े हो और हमारे बच्चे भी भाई हमारे लिए खड़े मेरे को लगता है इतना ज्यादा मेरे को लगता है हम कंफ्यूज्ड हैं. Yes. क्योंकि सब कुछ सारे कल्चर्स मिक्स हो गए हैं. या ये Western इंटरनेट की culture वजह आ से गया है. अभी लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो ना, वो पेरेंटिंग स्टाइल का जिन्होंने पूछा था, उन्होंने मुझे यही बोला कि मैम इतने सारे स्टाइल्स हैं इंटरनेट पे, व्हाट सूट्स अस बेस्ट. आई सेड व्हाट सूट्स यू बेस्ट इज, आप जिस जमीन पे पैदा हुए हो ना, हाँ. आप अपने आसपास देखो. ब्लाइंडली कॉपी और वो मत करो चीजों को जो आप पूरी तरह से, या तो आप पूरी तरह से वो करो कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ दो. बच्चों को भी छोड़ दो और आप हाउस हेल्प भी मत रखो. या सबसे बड़ी एब्सोल्युटली बात तो ये है. वो तो absolutely. सारे काम खुद करते हैं, यहाँ तो तुमसे हो नहीं पाएगा. ना काम भी, और अपनी लाइफ को वो 90 तक वो अपने काम खुद ही करते हैं. हाँ. We don't want, we just are picking one or two things from हाँ, there. जो अच्छी चीजें वही लेते हैं ना आदमी. हाँ. बट ऐसे कल्चर्स को आप इम्बाइब नहीं कर सकते. उस हिसाब से अगर आप देखो तो इंडियन कल्चर इतना होलिस्टिकली इवॉल्व और इतना बेहतरीन तरीके, देखो दे वर्क, योग है, exercises है, so physical and mental meditation comes from yoga as well. So that is also there. Spirituality is ingrained in our religions. You know, all आप इंडिया में कहीं से कहीं तक ट्रैवल कर लो, आपको हर थोड़ी जगह पे ये चीजें मिलेंगी मिलेंगी. That's true. हाँ. राइट. सो मतलब आप अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना, फैमिली वैल्यूज, रूट सिस्टम, इट इज सो इम्पोर्टेंट. आप अलग भी अगर रह रहे हो, एक एमिकेबली अलग होना, एक रिस्पेक्ट रखनी, एक अदब रखनी रिश्तों में, वो बहुत जरूरी है. और वो हमारे कल्चर में गिवन है, वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. क्योंकि वो है ना. Yes, वो मेरे को लगता है अगेन इट्स अ ह्यूमन नेचर. एंड जब ये चाहिए नहीं, जो यंग जनरेशन, वो हमें चाहिए. हाँ, जो यंग जनरेशन ये ढूंढने के लिए निकलती है ना कि यार क्या फायदा इस लाइफ का, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ, इट्स जस्ट सो और वो लोग ये नहीं समझ रहे कि लोग घूम फिर के हिमालय में और यहीं आ रहे हैं, ऋषि मुनियों के पास आ रहे हैं, हम निकलना चाह रहे हैं. यस. और यहाँ आप एक बार देखो तो सही, पढ़ो तो सही, हिस्ट्री हैज बीन, इतनी ह्यूमन आए हैं हमसे पहले, एंड सब कहीं ना कहीं तो किसी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना. सो देयर आर आंसर्स फॉर अस, we just need to find those answers. I know. Very well said. Acha Tanu, one advice you would want to give to our audience who are watching this, related to spirituality, power,
woman empowerment? What is Nari Shakti for you? If you could just See, elaborate. नारी की खूबसूरती जो है ना वो नारी होने में है, उस चीज को डिनाई मत करिए। इक्वल इक्वल मांगने के चक्कर में ना हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में यूनिक हैं। वी आर नॉट ऑल इक्वल, वी आर नॉट मेन, वी आर व्हाट वी आर। ये हमारी खूबसूरती है कि हमें कुदरत ने ये मौका दिया टू बी एबल टू लिव लाइक अ वुमन। उस चीज को सेलिब्रेट करिए। और एक ह्यूमिलिटी, एक एक ये जो अहम है ना कि अरे जो मैं आप मतलब फेक फेमिनिज्म का एक That's हम बात कर रहे बहुत थे, ज्यादा है। उस वर्ड को ऐसे थ्रो अराउंड किया जाता है, उसको मिसयूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एज एन एडवोकेट आई हैव सीन इट गोइंग टू अनदर Any लेवल, extent. राइट? सो बीइंग अ वुमन आई अंडरस्टैंड दैट yes, atrocities have happened, and in today's time also women are suffering, but वो balance maintain करना बहुत जरूरी है। जो Please, एक इस पे मुझे पूछना है. हाँ। Do you think women take advantage of it? there are some, There are certain people. yes, there are some who Because do take I feel there are advantage. men who are also Yes, suffering, oh my but God. they don't. We need to address this है issue ना? big We time. will. Yes. One day we will. One, men also suffer big time. और मुझे ऐसे लगता है कि जितना मिसयूज हमारी कंट्री में 498A हुआ है और पॉक्सो जो Prevention प्रिवेंशन of, ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो एक्ट है, उसमें भी बहुत मिसयूज हुआ उस एक्ट का। और जस्ट बिकॉज अगर एक पावर आपको मिल रही है, so don't let that corrupt you. Power comes with responsibility as well. वो responsibility को समझना कि हम एक फैब्रिक है सोसाइटी का, उसको हम कितना ही मिसयूज कर लोगे, इट इज गोइंग टू बैकफायर, राइट? That's true. That's सो आज नहीं करेगा, मे बी वो कल आपकी बेटी के लिए बैकफायर करेगा। सो जस्ट karma. yes, It comes back. yeah, so think before acting. And like you said, जो पावर, एम्बिशन एंड स्पिरिचुअल जो आपकी एक वो है फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअलिटी के बिना हम आगे नहीं चल सकते। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको एक आपकी जो जड़ है, आप अपनी जड़ों से जब जुड़े हुए हो, तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा पावर देती है। एक बैलेंस्ड लाइफ, एक अच्छी लाइफ, आप सब चीजें करो बट एक बैलेंस में Balance में करो. That's a thin line. या आप जब उस लाइन को क्रॉस करते हो तो आई थिंक इट जस्ट बैकफायर्स, उसका नुकसान ही है। That's true. So live happy, be blessed, stay kind, always make a good choice. The Thank choice you. is with you. Yes, thank you so much, Tanu. Thank you, I thanks had a to you. great time here. Same बहुत here. सीखा हमने आज. Same here. ये पॉडकास्ट सीरीज खत्म करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ. अलग अलग रूप है माँ देवी के, और हमने कोशिश की कि हर एक रूप को हम एम्फसाइज करके उसके बारे में बताएं आपको, और उससे रिलेटेड जो एक वुमन उसको रिलेट कर पाती है सबसे ज़्यादा। ऑल्दो एक वुमन में वो सारे रूप होते हैं, बट जिससे वो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं, हमने उनको इस पॉडकास्ट पे बुलाया और मुझे बहुत चीज़ें पता चली और बहुत इंस्पायरिंग भी थी काफ़ी चीज़ें, जैसे कि अ वुमन स्टार्टेड Kathak at the age of 50. There's a woman who has just switched her career and started doing something with her husband and for her son. और चाहे एक औरत में कितनी सहनशीलता होती है, after a lot of domestic violence also she did not give up. नारी शक्ति सच में बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप एक औरत हो और आपको लगता है आप कमज़ोर हो, आपको बहुत गलत चीज़ लगती है, हम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि हमारे में ही वो चीज़ है या हमारे में ही वो शक्ति है जो एक और लाइफ ला सकती है इस दुनिया में। और बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट आई वांट टू से फ्यू लाइन। यूँ तो लिपटी हूँ साड़ी में, घर की चार दीवारी में, उलझी हूँ जिम्मेदारी में, कहलाती हूँ नारी में। नारी ही शक्ति है और शक्ति ही नारी है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगले पॉडकास्ट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।